Hello everyone. Welcome to our Desh Videsh series, where we shall keep an eye on the current events happening in and around India and its world. Today we are going to talk about China versus US THAAD missile defense system. Well, China has lodged a serious protest against the deployment of US THAAD missile defense system in South Korea. So this has created tension between China and USA. Now, the focus of our video would be what is this US THAAD missile defense system and why is China so angered by it? Alright, so let's see the table of contents of this video. What will we cover? सबसे पहले तो we'll see what was in the news recently. What's the news about this US THAAD system and China? Then what is this THAAD system, THAAD missile defense system? Then why is China bothered by this system? And in the end, we'll take a look at THAAD controversy within the overall framework of Cold War between Beijing and Washington DC. Now, officially, no one has claimed that there is a Cold War between Beijing and Washington DC or China and USA. But many people think that the Cold War has already started. एक तरह से वो सिस्टम चल ही रहा है कि दोनों के बीच में टेंशन बहुत ज्यादा हो गई हैं. इसीलिए ओवरऑल फ्रेमवर्क में देखेंगे, इस कोल्ड वॉर के फ्रेमवर्क में देखेंगे थर्ड कंट्रोवर्सी को. Alright, so without further ado, let's begin with the recent news. What's in the news? Now, China has recently issued a statement reiterating its long-standing objections to the presence of US THAAD missile defense system in South Korea. है क्या कि यूएसए के ना बहुत सारे बेसिस हैं, मिलिट्री बेसिस हैं इन जापान एंड इन साउथ कोरिया. तो चाइना के आसपास यूएस के मिलिट्री बेसिस हैं. उन मिलिट्री बेसिस पे ना यूएसए ने क्या करा है, मिसाइल डिफेंस शील्ड लगा दिया, मिसाइल डिफेंस सिस्टम लगा दिया. दैट इज के साउथ कोरिया पे अगर कोई मिसाइल से अटैक करता है ना, तो यूएसए के पास मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो वो साउथ कोरिया को प्रोवाइड कर रहा है. राइट नाउ चाइना ने इस पे ऐतराज जताया है. अब वो ऐतराज क्यों जताया है और ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम काम कैसे करता है, वो अभी थोड़ी देर में देखेंगे. पहले न्यूज ही देख लेते हैं. The recent objections by the Chinese came after reports of an overnight operation to bring in new replacement interceptor missiles to the US base in South Korea. ऑलराइट ना हुआ क्या है कि यूएस थार्ड जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है ना, ये साउथ कोरिया में ना 2017 में डिप्लॉय हो गया था. तब भी चाइना ने प्रोटेस्ट लॉन्च किया था. बट अभी रिसेंटली न्यूज ये आई है कि जो मिसाइल्स है ना, ये जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम के अंदर जो इंटरसेप्टर मिसाइल्स हैं, उनको रिप्लेस किया जा रहा है, नई वेराइटी लेके आई जा रही है या उन्हें इंक्रीज किया जा रहा है. तो इस पर चाइना ने दोबारा से प्रोटेस्ट लॉन्च कर दिया है. The first objection from China came 3 years ago when the system was first deployed in South Korea. After that, the ties between USA and China went on a path of deterioration. Alright? Following the recent deployment of replacement missiles, China issued a strong statement urging USA not to harm the bilateral relations between Beijing and Seoul. Seoul is the capital of South Korea, as you all know. ठीक है? Plus China ने ये कहा है कि USA हमारे national interest में interfere ना करे. USA and South Korea have maintained that THAAD is only to counter potential threat from North Korea. साउथ कोरिया कहता है और यूएसए भी ये कहता है कि ये जो एंटी मिसाइल डिफेंस शील्ड है ना, ये नॉर्थ कोरिया के खिलाफ हमने करी है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन कभी भी थ्रेट दे देते हैं कि मैं न्यूक्लियर अटैक कर दूंगा. चाइना के खिलाफ नहीं है. बट चाइना ये मानता नहीं है. चाइना को लगता है ये उसी के खिलाफ है. South Korea has also issued a statement claiming that the number of missiles had not been increased but had only been replaced with newer versions. तो साउथ कोरिया ना चाइना को वो कर रहा है कि आप इतना ना डरिए, आप इतना ना गुस्सा होइए, ये ना बस ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो थी ना मिसाइल्स, उन्हीं को रिप्लेनिश कर रहे हैं हम. ठीक है, प्लस ये हम नॉर्थ कोरिया के अगेंस्ट कर रहे हैं. ठीक है, तो ये तो हमारी न्यूज होगी. अब एक बार ही देखते हैं थार्ड सिस्टम क्या है. थार्ड की फुल फॉर्म है टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस. पहला पॉइंट देखना, इट इज अ ट्रांसपोर्टेबल ग्राउंड बेस्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम हुज जॉब इज टू डिस्ट्रॉय कमिंग एनिमी बैलिस्टिक मिसाइल्स. अब ये काम कैसे करता है, बिल्कुल ये लेमन टर्म्स में अगर मैं बोलूं ना, बिल्कुल ही लेमन टर्म्स में, मतलब बहुत ही निहायत ही लेमन टर्म्स में बोलूं तो ये वैसे ही काम करता है थर्ड. जैसे आपको याद होगा रामायण महाभारत के जो सीरियल्स होते थे उसमें जो तीर कमान की लड़ाई होती थी, बिल्कुल वैसे ही काम करता है. ले बचा अपना वक्ष स्थल मेरे तीव्र बाणों से. I know. You guys must be thinking कि सर आप तो बहुत ही ज्यादा लेमन तरीके से आपने समझा दिया. बट डोंट वरी एंड ट्रस्ट मी, अभी हम थोड़ी और डिटेल में और टेक्निकल तरीके से इसे समझते हैं. ऑलराइट, सो पे अटेंशन. लेट्स टेक अ लुक एट द मैप ऑफ दिस रीजन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. अब जैसा कि आप देख सकते हो, पोजीशन ऑफ साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया एंड चाइना, जहां पे बीजिंग है. नाउ जैसा कि आप जानते हो, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में ऑलरेडी बहुत ही खतरनाक लेवल का कॉन्फ्लिक्ट है.
टेक्निकली अगर देखा जाए तो दीज टू स्टेट्स आर एट वॉर विद ईच अदर, टेक्निकली अगर देखा जाए, ठीक है। इन्होंने कोई पीस ट्रीटी साइन ही नहीं करी थी 1953 के बाद, तो इसीलिए नॉर्थ कोरिया से साउथ कोरिया को बहुत ज्यादा स्ट्रांग थ्रेट आता है। प्लस साउथ कोरिया में यूएस मिलिट्री के बहुत सारे बेसिस हैं, और जैसा कि हम जानते हैं कि नॉर्थ कोरिया इज एंटी अमेरिका, तो इसीलिए साउथ कोरियन रीजन में नॉर्थ कोरिया का थ्रेट तो हमेशा बना रहता है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि नॉर्थ कोरिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं और न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं, तो इसीलिए नॉर्थ कोरिया से एक न्यूक्लियरली आर्म्ड मिसाइल आ सकती है साउथ कोरिया की तरफ, इसीलिए साउथ कोरिया को चाहिए एक मिसाइल शील्ड। ऑलराइट, अब जैसा कि हम जानते हैं कि यूएसए और चाइना के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, और चाइना भी न्यूक्लियरली आर्म्ड नेशन है। प्लस साउथ कोरिया में यूएस आर्मी के बहुत सारे बेसिस इन्वॉल्व है, तो चाइना की तरफ से भी साउथ कोरिया में एक मिसाइल अटैक हो सकता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अमेरिकन फोर्सेस। इसीलिए आपका चाइना भी डेंजरस हो जाता है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ साउथ कोरिया। तो अब हम साउथ कोरिया के पर्सपेक्टिव से अगर प्रॉब्लम को देखें ना, तो साउथ कोरिया के नेबरहुड में दो डिक्टेटोरियल रिजीम्स हैं, और ये दोनों डिक्टेटोरियल रिजीम्स न्यूक्लियरली आर्म्ड हैं, इनके पास न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं। So, अगर वन फाइन डे किम जोंग उन डिसाइड्स टू अटैक साउथ कोरिया थ्रू हिज न्यूक्लियरली आर्म्ड मिसाइल, और चाइना एंगर्ड बाय प्रेजेंस ऑफ यूएसए इन साउथ कोरिया डिसाइड्स टू अटैक साउथ कोरिया, तो दोनों मिलके क्या पता न्यूक्लियरली आर्म्ड मिसाइल से अटैक कर दे साउथ कोरिया पे, और साउथ कोरिया पे अगर उन्होंने अटैक कर दिया तो साउथ कोरिया तो प्रॉब्लम में फंस जाएगा ना। तो इसीलिए साउथ कोरिया को अपने आप को बचाने के लिए, डिफेंड करने के लिए अगेंस्ट अ न्यूक्लियरली आर्म्ड मिसाइल अटैक, और न्यूक्लियरली आर्म्ड ही क्यों नहीं, मिसाइल अटैक से बचने के लिए, क्योंकि उसका हॉस्टाइल नेबरहुड है, उससे बचने के लिए उसके पास डिफेंस होना चाहिए। यहां पे ना यूएसए हेल्प करता है साउथ कोरिया की। साउथ कोरिया को यूएसए एक चीज देता है, एक टेक्नोलॉजी देता है, उस टेक्नोलॉजी का नाम है थाड, टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। ये टेक्नोलॉजी पता क्या करती है, ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम पता क्या करता है, अगर कल को साउथ कोरिया पे कोई मिसाइल लॉन्च कर देता है, तो ये जो टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस शील्ड है ना, ये उस मिसाइल को एटमॉस्फेयर में ही डिस्ट्रॉय कर देगी। ऑलराइट, होगा क्या, कल को लेट्स सपोज नॉर्थ कोरिया और चाइना मिसाइल लॉन्च कर देते हैं अपने साउथ कोरिया पे, तो साउथ कोरिया का जो ये थर्ड सिस्टम है ना, साउथ कोरिया में जो ये थर्ड सिस्टम है, ये डिटेक्ट कर लेगा कि मिसाइल लॉन्च हुई है, और जैसे ही डिटेक्ट कर लेगा वैसे ही ये अपनी ही इंटरसेप्टर मिसाइल लॉन्च कर देगा। ये जो ब्लू कलर की हैं, ये इंटरसेप्टर मिसाइल्स ना एटमॉस्फेयर में ही नॉर्थ कोरिया और चाइना की मिसाइल्स को मीट करेंगी और वहीं डिस्ट्रॉय कर देंगी। बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले रामायण की वीडियो में देखा, किसी एनिमी ने मिसाइल या तीर चलाया और फ्रेंड जो हीरो साइड है उसने भी तीर चला के उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। राइट, बिल्कुल, तभी मैंने वो वीडियो दिखाई थी एक्चुअली। एनीवे, जब ऐसा हो जाएगा तो एटमॉस्फेयर में ही ये डिस्ट्रक्शन हो जाएगी और साउथ कोरिया में डिस्ट्रक्शन फैलेगी नहीं। अब ये जो मिसाइल है ना, ये जो मैंने एरोज बनाए हुए हैं थार्ड के ऊपर, इन्हें हम कहते हैं इंटरसेप्टर मिसाइल्स। Alright, so these interceptor missiles, what they will do is that if they detect a launch from an enemy territory of a missile inside South Korea, अगर साउथ कोरिया में जा रहा है, तो ये जो इंटरसेप्टर मिसाइल्स हैं उन्हें एटमॉस्फेयर में इंटरसेप्ट कर लेंगी और डिस्ट्रॉय कर देंगी। ऑलराइट, अब ये ना जो कंपनी है जो थार्ड बनाती है, लॉकहीड मार्टिन, उनका एक ग्राफिक है। ये बिल्कुल ग्राफिक से ही आप समझ सकते हो कि ये जो थार्ड सिस्टम है, इसके पास रेडार भी है और इसके पास सैटेलाइट टेक्नोलॉजी भी है। तो ये रेड कलर की जो इनकमिंग मिसाइल है ये डिटेक्ट हो जाएगी, और यहां ट्रक से, लॉन्चर से इंटरसेप्टर मिसाइल जाएंगी और एटमॉस्फेयर में डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये मिसाइल जो रेड कलर की है ये टेरिटरी तक नहीं पहुंच पाएगी। ऑलराइट, अब एक्चुअली हम देख लेते हैं कि टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम है क्या, एक एक करके देख लेते हैं। It is a transportable ground-based missile defense system whose job is to destroy incoming enemy ballistic missiles. Alright? Now THAAD constitutes two major components. एक तो इसके space based components हैं, मतलब सैटेलाइट में ना जो सैटेलाइट होंगी उनमें इंफ्रारेड सेंसर्स होंगे जो डिटेक्ट कर लेंगे कि एक मिसाइल लॉन्च हुई है। तो एक तो स्पेस बेस्ड कंपोनेंट है, इट कंसिस्ट ऑफ सैटेलाइट बेस्ड इंफ्रारेड सेंसर्स व्हिच ट्रांसफर्स द डेटा अबाउट द इनकमिंग मिसाइल टू थर्ड इंटरसेप्टर मिसाइल। ऑलराइट, और कुछ होते हैं ग्राउंड बेस्ड कंपोनेंट्स। ग्राउंड बेस्ड कंपोनेंट्स में एक तो रेडार होगा जो डिटेक्ट करेगा लोकेशन ऑफ मिसाइल, और दूसरी होंगी इंटरसेप्टर मिसाइल्स जो लोकेशन डिटेक्ट होने के बाद लॉन्च हो जाएंगी और बीच में ही, रास्ते में ही एनिमी मिसाइल को डिस्ट्रॉय कर देंगी। ऑलराइट, नाउ दिस सिस्टम इज डिजाइन्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड बाय अ प्राइवेट यूएस कंपनी कॉल्ड लॉकहीड मार्टिन। और यूएसए ने ये जो सिस्टम है ना सिर्फ साउथ कोरिया में डिप्लॉय नहीं करा, यूएसए ने इजराइल में भी कभी ये डिप्लॉय करा था, यूएई में भी करा था, गुआम में करा था, रोमानिया में करा था। ऑलराइट, तो ये जो थर्ड सिस्टम है ना ये मिसाइल के अगेंस्ट आपको डिफेंस प्रोवाइड करता है। ऑलराइट, चलिए अब हम देखते हैं कि इस मुद्दे को लेकर कंट्रोवर्सी क्या चल रही है। लेट्स टेक अ लुक एट द कंट्रोवर्सी। तो ये जो थर्ड की प्रॉब्लम चल रही है ना,
इसमें दोनों साइड के आर्ग्यूमेंट देख लेते हैं, यूएसए और कोरिया के आर्ग्यूमेंट देख लेते हैं, चाइना के आर्ग्यूमेंट देख लेते हैं। सबसे पहले लेट्स टेक अ लुक एट आर्ग्यूमेंट्स बाय यूएसए। नाउ फर्स्ट पॉइंट, the US had previously announced that THAAD is a countermeasure against potential attacks by North Korea. यूएसए और साउथ कोरिया क्लियरली कहते हैं कि हमने चाइना के अगेंस्ट नहीं बनाया है, ये नॉर्थ कोरिया के अगेंस्ट बनाया है, क्योंकि आए दिन किम जोंग उनकी तरफ से न्यूज आती रहती है कि वो न्यूक्लियर वेपन बना रहा है, वो मिसाइल बना रहा है। एक बारी तो किम जोंग उन ने साउथ कोरिया और जापान की डायरेक्शन में मिसाइल टेस्ट भी कर दी थी, राइट? तो इसीलिए यूएसए कहता है कि हम ये जो डिफेंस शील्ड है साउथ कोरिया में इसलिए लगा रहे हैं बिकॉज साउथ कोरिया को डर है नॉर्थ कोरिया से, राइट? सेकंड पॉइंट देखना, स्पेशली आफ्टर द कंट्री एंगेज्ड इन, कंट्री का मतलब नॉर्थ कोरिया, एंगेज्ड इन बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट। In 2017, North Korea test fired a ballistic missile in the direction of US bases in Japan. ठीक है? So following this incident, the US moved the systems to its military base in Osan, South Korea. Clear? अब यूएसए कह रहा है कि चाइना की तरफ एम्ड ही नहीं है, ये नॉर्थ कोरिया की बेलिजरेंस को रोकने के लिए है। बट चाइना का आर्ग्यूमेंट क्या है? व्हाट आर द आर्ग्यूमेंट्स गिवन बाय चाइना? पहला पॉइंट देखते हैं। More than the missiles, China is worried about the inbuilt advanced radar system in THAAD that could track China's action. चाइना कहते हैं हमें मिसाइल से इतना डर नहीं है, क्योंकि अगर आप मिसाइल चलाओगे फिर तो ऑल आउट वॉर चल रहा होगा। हमें डर है कि आपका ये जो THAAD सिस्टम है ना, इसमें ना रेडार बहुत अच्छा लगा हुआ है, और उस रेडार के थ्रू आप चाइना के अंदर सर्वेलेंस एक्टिविटी कर सकते हो या चाइनीज एक्शंस को डिटेक्ट कर सकते हो। क्योंकि आपका ये जो THAAD सिस्टम है ये चाइना के बहुत पास होगा, साउथ कोरिया बिल्कुल चाइना के पास है, तो इसीलिए आप चाइना पे नजर रखने के लिए ये सिस्टम लेके आ रहे हो। Plus, China is also worried about the deployment of military installations around Chinese territory by USA through its defense bases. चाइना इस बात से भी वरिड है कि यूएसए के मिलिट्री बेसिस अराउंड चाइना बढ़ते जा रहे हैं, साउथ कोरिया में है, जापान में है, और बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजीज लगाई जा रही हैं इन मिलिट्री बेसिस में, जैसे THAAD हो गया। इसीलिए चाइना को लगता है कि ये ना यूएसए की स्ट्रैटेजी है टू कंटेन चाइना इन एशिया, चाइना कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी है। प्लस लास्ट पॉइंट देखना, China believes that USA exerts influence over Japan and South Korea and interfere with Beijing's long-term military, diplomatic and economic interests in the region. Therefore, that is why China is angered over these deployments in South Korea by USA. Alright? Now, जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ये USA ने आज नहीं डिप्लॉय करा है THAAD, ये 2017 में ही भी डिप्लॉय करा था, और 2017 में भी चाइना ने प्रोटेस्ट लॉन्च करा था, चाइना ने काफी एक्शंस लिए थे, राइट? अब चाइना दोबारा क्यों इसको रिपीट कर रहा है? बिकॉज यूएस रिपोर्ट ये आई है कि यूएस से वो जो इंटरसेप्टर मिसाइल है ना, उन्हें रिप्लेनिश कर रहा है और उन्हें रिप्लेस कर रहा है नए वर्जन से। तो एकदम से चाइना को लगता है, चाइना ने दोबारा ये कंट्रोवर्सी उठा दी है। अब 2017 में जब चाइना ने इस पे प्रोटेस्ट लॉन्च किया था, तो चाइना ने रिस्पॉन्ड कैसे किया था कि साउथ कोरिया में THAAD लग रहा है, तो चाइना ने रिस्पॉन्ड कैसे किया था? चाइनाज रिस्पॉन्स इन द पास्ट, back in, this is not win गलती से लिखा गया, back in 2017 when this controversy first surfaced, China reacted by hurting South Korea economically. साउथ कोरिया की को इकोनॉमिकली हर्ट करना शुरू कर दिया था। अब जैसे साउथ कोरिया की बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे LG, सैमसंग वगैरह के ऑपरेशंस चलते थे चाइना में, चाइना ने उन्हें बंद कर दिया। प्लस साउथ कोरिया की जो टूरिज्म इंडस्ट्री है ना, उसमें चाइनीज टूरिस्ट का बहुत बड़ा हाथ है। बट जैसे ही ये THAAD कंट्रोवर्सी हुई थी ना, चाइनीज टूरिस्ट ने जाना बंद कर दिया था साउथ कोरिया में। प्लस साउथ कोरिया की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बहुत ज्यादा बड़ी है। फोर्थ पॉइंट देखना, साउथ कोरियाज एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री विटनेस कॉन्सर्ट्स, शोज एंड अदर कमर्शियल वेंचर्स इन चाइना बाय K-pop स्टार्स being forced to cancel as a result of this controversy. प्लस 2017 में ना साउथ कोरियन जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स है ना, वो चाइना में बहुत ज्यादा चलते हैं, तो चाइना ने उन्हें भी बॉयकॉट करने की बात कह दी। अच्छा, चाइनीज गवर्नमेंट ने बॉयकॉट नहीं करा था, बट चाइनीज सोशल मीडिया पे ना बहुत ज्यादा जो चाइनीज सिटीजन हैं उन्होंने बॉयकॉट की बात कह दी थी। चाइनीज नेशनलिज्म बढ़ गया होगा, तो बॉयकॉट की बात कही थी, तो जो साउथ कोरियन कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री है, ये ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, उनको बहुत नुकसान होने लग गया। इसीलिए साउथ कोरिया ना बार बार चाइना को बोल रहा है कि ये आपके खिलाफ नहीं है, ये नॉर्थ कोरिया के खिलाफ है, हम तो मिसाइल्स बढ़ा नहीं रहे हैं, हम पुराने वर्जन को नए वर्जन से रिप्लेस कर रहे हैं। ऑलराइट, तो ये था पूरा मुद्दा THAAD कंट्रोवर्सी का। बट ये जो THAAD कंट्रोवर्सी का मुद्दा अभी आया है ना, इसे हमें ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए, क्योंकि 2017 में जब ये मुद्दा आया था ना, तो इतना ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं था, बट आज इसकी सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा बढ़ गई है। क्यों बढ़ गई है? बिकॉज मेनी इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स बिलीव दैट देयर इज एन ऑनगोइंग कोल्ड वॉर बिटवीन यूएसए एंड चाइना। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में हमें देखना चाहिए ये जो THAAD कंट्रोवर्सी है। अब जैसा कि हम देख रहे हैं कि चाइना इज फ्लेक्सिंग इट्स मसल्स especially against the allies of USA in Asia, जैसे इंडिया के अगेंस्ट वो इट इज फ्लेक्सिंग इट्स मसल। ये जो लद्दाख कंट्रोवर्सी चल रही है, उसमें चाइना इज ट्राइंग टू पिक अप फाइट्स विद
अमेरिकन allies, जैसे कि इंडिया हो गया, लद्दाख कंट्रोवर्सी वही है। फिर साउथ चाइना सी में चाइना इज फ्लेक्सिंग इट्स मसल्स, ठीक है। अब साउथ चाइना सी में जैसे वियतनाम हो गया, फिलीपींस वगैरह हो गया, ये काइंड ऑफ अमेरिकन एलाइज तो नहीं कहना चाहिए, बट आसियान कंट्रीज काफी ज्यादा यूएसए के पाले में है, ठीक है। दो उनका चाइना के साथ रिलेशनशिप अच्छा है, बट स्टिल चाइना इज फ्लेक्सिंग इट्स मसल्स इन इट्स नेबरहुड, ठीक है। तो चाइना अगर ऐसा कर रहा है अमेरिकन एलाइज के साथ, तो अमेरिका ने भी सोचा कि हम भी चाइना के खिलाफ कुछ करते हैं, राइट। तो साउथ कोरिया के थ्रू चाइना अमेरिका क्या कर रहा है, साउथ कोरिया के थ्रू चाइना पे ये कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहा है, ये अपने मसल्स फ्लेक्स कर रहा है। तो ये जो थर्ड कंट्रोवर्सी है, दिस इज नथिंग बट अमेरिका यूटिलाइजिंग इट्स एलाई इन द एशिया पैसिफिक रीजन साउथ कोरिया टू थ्रेटन और फ्लेक्स इट्स मसल इन फ्रंट ऑफ चाइना। ऑलराइट, so that's it from my side guys. ये था पूरा का पूरा US third missile defense system controversy. If you have any doubts, then please write about those doubts in the comment section below. I'll see you next time with more stuff on Desh Videsh.